the topic is general introduction to parasitology. So first of all, the taxonomy of parasites. जब भी हम कोई भी lecture start होगा बैक्टीरिया है parasite है, you should be came across the term no taxonomy. मतलब taxonomy मतलब जैसे आपका नाम राम श्याम जैसे भी है तो फैमिली में राम पहले आता है, उसके बाद आपकी जो भी कास्ट है बंसल कपूर जो भी है तो एक सरनेम होता है, एक उसका प्रॉपर नेम होता है. Likewise the organisms are also named and this is known as taxonomy. Fine. According to the binomial nomenclature as listed by Linnaeus, each parasite has two names, genus and its species name. And these names are basically discovered by the name of the discoverers and they are in Greek or Latin words. And they are basically classified into, first the broad term is kingdom. Fine. Broad term is kingdom, then subkingdom, then phylum, then subphylum, then superclass, then class, order, suborders, superfamily, family, genus and species. So the generic name of the patient always begin with the initial capital letter and species name with an initial small letter followed by the discoverer's name, punctuation and date. Fine. So what is parasite? Parasite, it is basically a living organism which lives upon other host organisms and even derive their nutrition and without giving an benefit. ये आपने सुना ही होगा कि कोई भी पैरासाइट कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो किसी की बॉडी में सर्वाइव करे एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. आइदर ही और शी, आइदर दैट पर्सन विल गिव बेनिफिट और नॉट, दैट इज डिफरेंट थिंग. फाइन. सो द प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथोलॉजी आर बेसिकली स्टडीड इन मेडिकल पैरासाइटोलॉजी. So what is ecto and what is endoparasite? Ectoparasite which survives upon the body, whereas endoparasite it resides inside your body. Fine. So the ectoparasite examples are fleas and ticks. And these infections by these parasite is known as infestation. जैसे किसी को जुएं बढ़ती हैं तो वो सिर के ऊपर बालों में होती हैं. So likewise endoparasitis which invades inside your body like leishmaniasis you have term. And when the infestation is term used for ectoparasite when the organism infests on the body, whereas when the infection is caused means that when parasite reside inside the body it is known as infection. Fine. So ये चार terms है when you came across. Obligate का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं ढीठ. इतनी बात समझ में आती है ना. तो ढीठ पैरासाइट क्या है? The parasite whose life cycle does not complete without host. कई पैरासाइट ऐसे हैं कि होस्ट ना भी हो पानी में सरवाइव कर जाते हैं, हो ना हो चल जाता है. बट ऑब्लिगेट में क्या है कि व्हेन देयर इज नो होस्ट द पैरासाइट इज नॉट एबल टू सर्वाइव. नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव का मतलब है हो ना हो काम चल जाएगा. फाइन. सो द फैकल्टेटिव इज अ पैरासाइट विच कैन लिव a parasitic life or free living when the opportunity arises they cause infection like acanthamoeba. Then is accidental parasite. Accidental parasite are those basically जैसे कोई parasite है उसका host human नहीं है but the parasite resides may come across a human being, so they can cause an infection accidentally. So these are basically accidental parasites. Whereas wandering parasite or aberrant parasites, these are the parasites which infect the host where it cannot live or develop further. Means they can cause infection. They come inside the body of the human being. Like some infection are not caused in human being, but the parasite came inside your body and it cannot live or means अगर उसकी स्टेज जैसे हम पैरासाइट पढ़ते हैं उसकी कोई ना कोई स्टेज होती है, उसका लार्वा है, उसकी कुछ भी स्टेज है. अगर कोई ह्यूमन बीइंग के अंदर वो इन्फेक्शन कॉज करता है बट ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ होस्ट फॉर दैट, तो वो अंदर रहेगा. लार्वा में गया तो इट विल सर्वाइव एज अ लार्वा एंड लार्वा फॉर्म में वो मर जाएगा. वो लार्वा से आगे उसका लाइफ साइकिल प्रोग्रेस नहीं करेगा. एंड दीज आर कॉल्ड द एबरेंट पैरासाइट और वैंडरिंग पैरासाइट्स. एग्जाम्पल इज टॉक्सोप्लाज्मा कैनिस एंड कैटिस इन ह्यूमंस. फाइन. नाउ फर्दर मूविंग इज होस्ट. होस्ट कौन है? होस्ट इज बेसिकली ऑर्गेनिज्म विच हार्बर्स द parasite and provides nourishment and shelter. Fine. So there are two types of host, definitive and intermediate. Definitive is the host in which the parasite completes his sexual life cycle. Fine. Whereas in the intermediate host they fulfill their only asexual cycle. So sexual cycle example is Anopheles species for Plasmodium, whereas man is a intermediate host for Plasmodium. So now further is reservoir host, paratonic host and amplifier host. Amplifier का जैसे आपको नाम समझ में आता है means divide करेगा exponentially and live inside and parasite. So basically amplifier host is a host in which the parasite lives
एंड डिवाइड एक्सपोनेंशियली मीन्स कि वो अपनी ही आगे 1 to multiple to triple colonies बनाता रहेगा एंड दे कैन डिवाइड. Whereas reservoir host is a host which harbors the parasite and it just acts as a source of infection. That's it. Whereas paratenic host is a host in which the parasite cannot further multiply and it is also not essential for its life cycle. Means कि जरूरी नहीं है कि वो साइकिल जैसे कोई भी पैरासाइट एग्जाम्पल एंड जो स्ट्रोंगिलोसिस है उसमें फ्रेश वाटर पॉन्ड्स है, अगर उसके कंटेक्ट में वो पैरासाइट नहीं भी आता इवन देन द पैरासाइट कैन सर्वाइव. अगर उनके कंटेक्ट में आ गया देन इट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आता देन इवन देयर साइकिल परसिस्ट. डोंट वरी, यू गाइस गोना हैव अ elaborate lectures further. ये तो जस्ट आपको ओवरव्यू देना है. फाइन, सो दैट यू गाइस कैन कम अक्रॉस द टर्म्स कि होस्ट क्या है, रिजर्वायर होस्ट क्या है, एम्पलीफायर क्या है, बाकी डिटेल्स आएंगी आके लेक्चर्स में. फाइन, सो पैराटेनिक होस्ट, इट इज अ होस्ट इन विच द पैरासाइट लिव्स but it cannot develop further and it is not essential for the life cycle. Fine. Further is the host parasite relationship. First term is symbiosis. Symbiosis का क्या मतलब है? म्यूचुअली दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लेंगे, हार्म नहीं करेंगे. सो symbiosis, it is a close association between the host and the parasite and they are interdependent upon each other that one cannot live without the help of other. Whereas commensalism is one is getting benefit out of the other without causing any injury to the host. Whereas parasitism in which they get benefit from the host and also cause injury to the host. Fine. So symbiosis, it is mutual that both of them getting benefit, whereas commensalism one is getting benefit without causing harm to second one, whereas parasitism is parasite derives the benefit from the host and also cause injury to the host. So transmission, सोर्स और द रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सोर्स का मतलब क्या है कि मैन के थ्रू इन्फेक्शन हो रही है, एनिमल के थ्रू हो रही है, वेक्टर के थ्रू हो रही है, कंटेमिनेटेड सॉइल एंड वाटर है. दीज आर फर्दर एग्जाम्पल्स. सो मैन is a source of infection for amoebiasis and enterobiasis. Fine. Enterobiasis is caused by Entamoeba histolytica. It is very severe infection. Whereas next is animals. Animals example is echinococcus. It is caused by the dogs. Whereas vectors include Anopheles for malaria, Culex for filariasis, sandfly for Kala-Azar, and Ludwig's bug for Chagas disease. Whereas other diseases are caused by the contaminated soil and water. जैसे soil में hookworm and ascaris वगैरह होते हैं तो वैसे इन्फेक्शन हो सकती है. एंड कईयों में क्या है, वाटर के थ्रू इन्फेक्शन होती है. जैसे अपन कई बार वाटर बॉयल करके नहीं पीते, आरओ वाटर नहीं पीते, कंटेमिनेटेड वाटर होता है, देन इट विल कॉज अ डिजीज. फाइन. So raw and undercooked meat also leads to infections. Fine, that is included by Cysticercus bovis and cellulose. So these are basically source, मतलब कहाँ से infection originate हो रही है and it is leading to everything. Whereas modes of transmission के एक person से दूसरे person को वो कैसे transmit हो रही है. So it is oral or fecal-oral route. Example is for cyst of the Entamoeba histolytica, O of Ascaris, Enterobius and Trichuris. Next one is penetration of the skin. देखो हर इन्फेक्शन का अलग रूट है. मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो पैरासाइट कॉज करते हैं वो अपना मुंह के थ्रू, दैट इज ओरोफिकल. कईयों में क्या है, जैसे अपनी सेकंड एग्जांपल है पेनिट्रेशन. स्किन के थ्रू, स्किन के पैर यूजुअली जो अपना पेनिट्रेशन में अपना है स्ट्रोंगिलाइटिस सीरोसर्काइटिस है, पैर के थ्रू इन्फेक्शन होती है, अंदर चला जाता है, फिर बॉडी में वो लोकलाइज्ड लीजन्स या लिम्फोडेनोपैथी या सेलुलाइटिस कॉज करता है. लाइकवाइज बाइट ऑफ वेक्टर, जैसे आपने सुना ही होगा मलेरिया की इन्फेक्शन होती है तो एनाफ्लीज, सबने नाम सुना ही हुआ है एनाफ्लीज का. सो इट इज अ बाइट ऑफ अ वेक्टर. एनाफ्लीज फीमेल एनाफ्लीज करती है, मेल नहीं करता. सो फीमेल एनाफ्लीज कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, whereas Culex for filariasis. Whereas vertical transmission, vertical is from mother to fetus. If the mother is having an infection, then the chances that infection is transmitted to the children. That includes Toxoplasma gondii, Plasmodium species, and cruzi. Next is the blood transfusion. So blood transfusion, it leads to means अगर जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या है, जैसे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है, दैट पेशेंट नीड अ ब्लड, तो उसको ब्लड देने से पहले कोई जो हमारे पास रिजर्व ब्लड हो या किसी का सैंपल हम लेते हैं तो उसके चेक करते हैं उसके वायरल मार्कर हेपेटाइटिस बी, सी, HIV एंड हम RPR करके सिफिलिस चेक करते हैं. एंड वी विल ऑल्सो चेक फॉर द प्लाज्मोडियम मलेरिया, क्योंकि अगर किसी को इन्फेक्शन है वो इन्फेक्टेड ब्लड हम अगर पेशेंट को चढ़ा देंगे then the patient may have a malarial infection. Fine. So these are the further examples: malaria, babesia, toxoplasma, leishmania and trypanosomiasis.
सो अनदर इज ऑटो इन्फेक्शन. ऑटो मतलब अपने आप, इन्फेक्शन मतलब किसी पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हुई है देन इट अकर्स रिपीटेडली इन द सेम पेशेंट. फाइन. अगर हमने दवाई दी, पेशेंट ठीक भी हो गया, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ साइकिल की कुछ ना कुछ स्टेजेस रह जाती हैं, तो वो रिपीटेडली द पेशेंट गेट इन्फेक्शन. सो एग्जाम्पल इज क्रिप्टोस्पोरिडियम, एचटाना, एंटेरोबिस वर्मिकुलरिस, स्ट्रोंगिलाइटिस एंड टीनिया सोलियम. सो व्हाट डज द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट इंक्लूड? दो तरह से लाइफ साइकिल है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स व्हेन द पैरासाइट रिक्वायर्स ओनली वन होस्ट टू कंप्लीट इट्स साइकिल, whereas indirect when it requires 1 to 2 or 3 more hosts. Fine. So जो अपना मेन होस्ट है वो मैंने आपको बताया डेफिनेटिव होस्ट जिसमें सेक्सुअल साइकिल होएगा, एंड दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें एसेक्सुअल साइकिल है. सो इफ द पेशेंट इज हैविंग अ 2 मींस इफ द पैरासाइट इज हैविंग अ 2 host then it comes in indirect, and if it is having 3 hosts means 1 definite and 2 intermediate hosts, they are also included in the indirect cycle. So these are just examples. You just have to remember 1 or 2 examples for your exam purpose. So protozoa, H. histolytica, Giardia, Lambia, Trichomonas vaginalis, these are all caused by infection only one host, that is man. So another is indirect cycle. Leishmania has 2 hosts, one definitive, that is man, and intermediate host is sandfly. Likewise the other examples. Fine. These are the further examples of one definitive host and one intermediate host. These include Plasmodium, Babesia, Sacrocystis, Toxoplasma gondii. For example, you came across Toxoplasma gondii, आप बहुत सुनोगे, तो वो cat के through होता है. Cat is a definitive host and intermediate host is man. Further, having a 3 host, that is 1 definitive and 2 intermediate host. So these are further examples. So moving further, that is pathogenesis. Means the person is having an infection, how the patient, means जो source and root of infection we have all discussed. Now is pathogenesis. After the parasite enter inside your body, what the parasite is going to do? Fine. So first is mechanical transmission, trauma, that is trematode eggs being larger in size. वो स्किन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो अगर इंटेस्टाइन में जाते हैं तो इसकी एग्जाम्पल सिस्टोसोम है. अगर वो हेमेटोबियम है तो यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं. लंग्स में पैरागोनोमियस होता है. लिवर में फिशियोला हेपेटिका है. जब हेपेटिका आता है, हेपेटिक्स हम लिवर को बोलते हैं. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर द वे इट इज. फाइन. अदर इज लार्वा. लार्वा में क्या है, देखो एग्स में तो क्या कि बॉडी पे एग्स जहां डिपॉजिट होंगे वहाँ सेलुलर रिएक्शन हो सकता है. सो फर्स्ट इज इंक्लूड मैकेनिकल ट्रॉमा इंक्लूड्स एग्स. नेक्स्ट इज लार्वा. लार्वा क्या है, मोटाइल होएगा तो बॉडी में यहाँ घूमेगा. सो जहां जहां वो जाएगा इट इज गोइंग टू स्प्रेड द इन्फेक्शन. सो फर्स्ट लार्वल एग्जाम्पल इज हुकवॉर्म, स्ट्रोंगिलाइटिस एंड स्कैरिस. नेक्स्ट इज अडल्ट वॉर्म. अडल्ट वॉर्म क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन की वॉल के साथ अडियर कर जाएंगे. अब देखो जो नॉर्मल वॉल है उसकी अपनी लेयर है, अगर कोई साथ में जाके अटैच करेगा तो अपने स्क्रीशन क्रिएट करेगा तो उसकी वॉल को तोड़ेगा. सो बेसिकली दे आर लीडिंग टू मैकेनिकल ट्रॉमा. Now other lesions, one is space occupying lesions, means that when the organism, the parasite invades inside your body, then it leads to compress some organs or tissues. So likewise they lead to space occupying lesions. Like is tinea. Tinea अगर दिमाग में जाता है तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कॉज करता है. फाइन. सो अनदर आर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस. इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में क्या है कि अगर जैसे ट्रीमेटोड्स के एग्स हैं, अगर वो स्किन में अवेट करते हैं तो वहां पे वो सेलुलर रिएक्शन करके ग्रेनुलोमास बना देते हैं. फाइन. वर्चुरिया बैनक्रफ्टाई है, ये लंग्स को इन्वेड करके तो वहां के रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब दे विल लीड टू सेलुलाइट, मतलब लंग इन्फेक्शन हो जाएंगी. फर्दर इज एंजाइम प्रोडक्शन एंड लाइटिक नेक्रोसिस. मीन्स कि जब पैरासाइट्स बॉडी में जाएंगे दे विल रिलीज सम एंजाइम्स एंड दे लीड टू लाइसिस इन ब्रेकडाउन ऑफ द सेल्स. फाइन. Toxins play a little role. For example, it is found in the Entamoeba histolytica. It will secrete histolysins which lead to degradation of the tissue. Then is allergic manifestation. Allergic manifestations means allergy में हम क्या सुनते हैं, hypersensitivity reactions basically. So schistosomes lead to cercardial dermatitis. Dermatitis मतलब skin को inflame करेगा. Hydrated cyst अगर फट जाएगी then it will lead to sepsis also. Occult filariasis may also occur. Some of the parasite may lead to neoplasia. Neoplasia means carcinomas. जो cystosoma groups हैं, they may lead to bladder carcinoma, clonorchis and opisthorchis, they lead to cholangiocarcinoma.
देन सर्टेन ऑर्गेनिज्म में लीड टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हम पैरासाइट पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ पैरासाइट्स दे में लीड टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एग्जाम्पल शिस्टोसोमियासिस एंड स्ट्रोंगिलाइटिस। नाउ ये तो हमने जनरल पढ़ा कि इन्फेक्शन कैसे हुई, क्या हुई। अब बॉडी में इन्फेक्शन तो हो गई, अब इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी कुछ रिएक्ट करेगी, दैट इज व्हाट इम्यून रिस्पॉन्स इज। तो इम्यून रिस्पॉन्स दो तरह का होगा। आपकी इम्यूनिटी हो गई है, इम्यूनिटी बाय चैप्टर्स कोई अभी आगे आएंगे फिर। तो इम्यूनिटी आएगी तो इम्यूनोलॉजी में रोल किसका आएगा, होस्ट का और पैरासाइट का। होस्ट जैसे हम, अगर हमें इन्फेक्शन होती है, हमारी इम्यूनिटी क्या है, एज क्या है, कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई न्यूट्रिशन ठीक ले रहा है, माल नरिश तो नहीं है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन कोई प्रीडिस्पोजिंग तो नहीं है। वैसे ही पैरासाइट प्रॉपर रूट से अंदर गया है बॉडी में, साइज क्या है पैरासाइट का, रिपीटेड इन्फेक्शन तो नहीं हो रही है, ऑटो इन्फेक्शन व्हाट इज कॉल्ड। सो वेरियस इम्यून मैकेनिज्म्स मे प्ले रोल। So host immunity against the parasite involves two types, that is innate and second is innate and adaptive, that is acquired. Fine. And further is unwanted or harmful response. जब भी immune response कुछ ज़्यादा हो जाता है then it is called hypersensitivity reaction. Fine. So first is the protective immune response. So whenever the hypersensitivity reactions occur, it damages. It doesn't provide any protection. Whereas so it is included under unwanted. Fine. So protective immune responses, some of the parasites can be eliminated completely by host immune response, while few are difficult to eliminate. कुछ parasites eliminate हो जाते हैं, कुछ नहीं होते तो वो रीबर्स करके दोबारा infections होती रहती हैं. That's why parasitic infections are they reoccur frequently. Fine. Premonition in some infections, the immune defense of the host is sufficient to resist further infection, but insufficient to destroy the parasite. मीन्स देखो किसी को कोई इन्फेक्शन हुई है किसी पैरासाइट से, एग्जाम्पल इज मलेरिया। तो कई बार क्या होता है, मलेरिया की सारी स्टेजेस को हमारी बॉडी, हमने वैक्सीन ट्रीटमेंट दिया तो सारी स्टेजेस को एंटी मलेरियल ड्रग से किल नहीं कर पाती हैं, कुछ ना कुछ रह जाती हैं। फाइन। तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की तब तक रहेगी जब तक वो स्ट्रेन है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से इन्फेक्शन हुई है तो वाइवेक्स के कारण जो बॉडी में होना था वो हो गया, बट अगर वाइवेक्स हुआ है तो पेशेंट को दोबारा वाइवेक्स की इन्फेक्शन उस टाइम नहीं होगी। जब वो ठीक हो गया उसके बाद हो सकती है। सो read it again. In some infections, the immune defense of host is sufficient to resist further infection, but insufficient to destroy the parasite. The immunity lasts till the original infection remains active and prevents further infection. मतलब जब तक infection already है तो और infection नहीं होएगी वो parasite से. Fine. These examples are infection immunity, premonition, concomitant immunity or incomplete immunity. देन मूविड इननेट का हम क्या सोचते हैं, बाय बर्थ होगी या पहले से इनबॉर्न होगी। सो दिस इज बेसिकली इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में होती है। सो फर्स्ट इज एज, द टू एज ग्रुप्स लाइक एल्डरली ग्रुप एंड न्यूबॉर्न्स, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है एंड इट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट मच इम्यूनिटी। फाइन। So in the fetus toxoplasma infection chances are more, where and other is sex. Males are more predisposing to the other infection amoebiasis, while females hookworm, क्योंकि hookworm infection होती है तो it leads to anemia, blood loss होता है। तो females में वैसे भी blood loss होने के chances बहुत होते हैं, so it prefer to means we can say it leads to more chances of anemia in females. Then other is malnourishment. So whenever the patient is malnourished, the chances of having the parasitic infections are more. Further is genetic constitution of the individuals, like patient having HbS antigen, हीमोग्लोबिन ए होती है हमारे पास वैसे बॉडी में, कुछ बच्चों में HbS एंटीजन होता है तो उनमें सिकल सेल डिजीज का जो होता है तो उनमें फैल्सीपैरम मलेरिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है, मतलब कि पेशेंट के पास इनबॉर्न रेजिस्टेंस, ऐसे तो वो बीमारी है बट उनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं इफ द पेशेंट इज थैलेसेमिक और द पेशेंट इज हैविंग HbS hemoglobin or the fetal hemoglobin. Fine. So another is the adaptive or acquired. Adaptive का मतलब इन्फेक्शन हुई उसके बाद बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया, फिर बॉडी के पास वो कुछ ना कुछ इम्यूनिटी रह गई कि नेक्स्ट टाइम अगर वही सेम वायरस आके हम बैक्टीरिया आके इन्फेक्शन करेगा देन ऑलरेडी एंटीबॉडीज बने होंगे एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी। फाइन। So it is acquired. It includes cell-mediated and humoral response. Cell-mediated response is by the help of the T helper 1 cells.
Fine. T helper 1 cells secrete interleukin 2 and interferon gamma, and they also stimulate T cytotoxic cells. TC cells क्या होते हैं? Cytotoxic cells होते हैं, and they also act by ADCC, that is antibody dependent cell mediated cytotoxicity. These terms will be broadly discussed in your immunity chapter, so don't worry about that. Fine. नेक्स्ट इज अ ह्यूमोरल रिस्पॉन्स. जो जब भी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें टी हेल्पर सेल्स आएंगे. ह्यूमोरल्स में अपना क्या आता है? एंटीबॉडी. फाइन. और कुछ सेल्स का भी रोल आता है. सो टी हेल्पर 2 सेल्स है, ये क्या करते हैं? बी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे. बी सेल्स का एक ही रोल है भाई, एंटीबॉडी बनाना. सो वेन एवर द सिग्नल इज गिवन टू देम, सो बी सेल्स गेट एक्टिवेटेड एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. एंड अदर मैकेनिज्म आर न्यूट्रलाइजेशन, देन इज सक्रीशन ऑफ सेक्रेटरी IgA. हमें पता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का रोल आता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgA का रोल इम्यूनिटी में आता है. पैरासाइट्स में IgE लेवल्स बढ़ जाते होते हैं. फाइन. इओसाइनोफिलिया वगैरह हो जाता है. दैट इज इट. सो फर्दर इज कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड एक्शन एंड मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन. सो हमारी जब भी इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसके मीन्स कॉम्पोनेंट्स क्या है? फर्स्ट इज एनाटॉमिकल बैरियर. एनाटॉमिकल बैरियर इज स्किन एंड म्यूकोजा. हमारी स्किन है, ऊपर बॉडी में है, अगर यहाँ पे चोट लगती है या कैसे भी होता है, स्किन प्रोटेक्ट करिए अंदर वाले सेल्स को. सो वेन एवर देयर इज अ ब्रीच ऑफ द एपिडर्मिस, तभी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. लाइकवाइज द एनाटॉमिकल बैरियर्स प्ले अ रोल. स्किन हैज अ रोल फॉर शिस्टोसोमियासिस, हुकवर्म एंड स्टोंगिलाइटिस. अभी मैंने बताया था ना कि स्किन पैर के थ्रू अंदर पेनिट्रेट करता है, सो इट एक्ट्स अ बैरियर. जब भी आपकी स्किन पैर की फटी होगी या चोट लगी होगी, देन देयर अकर्स इंक्रीज द चांसेस ऑफ देयर इन्फेक्शन. फाइन. इफ द मैकेनिकल बैरियर इज कंप्लीट, मतलब अपनी स्किन ठीक है, कोई चोट नहीं लगी है, नॉर्मल है, देन देयर आर लेस चांसेस टू गेट इन्फेक्शन. फर्दर इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स फॉर एग्जाम्पल इन जियार्डिया. जियार्डिया जो है वो क्या करते हैं? जो स्टमक है, स्टमक में अपनी एसिडिटी होती है, HCl होता है. सो HCl के कारण स्टमक का pH कम होगा. फाइन. एसिड ज्यादा है तो pH कम होगा. तो pH कम होगा तो उस pH पे जियार्डिया एंड ड्रैकुनकुलस सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है. सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ जियार्डिया एंड ड्रैकुनकुलस इफ योर स्टमक इज ओके. फाइन. एसिडिक प्रॉपर्टीज आर नॉर्मल ऑफ दैट. अदर आर कॉम्प्लीमेंट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स. So these are examples. In an exam you can even get a note of any of the hypersensitivity reaction. Fine. वैसे तो ये इम्यूनिटी में से आता है, बट इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पैरासिटिक में भी है. जैसे टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसमें IgE का रोल आता है. फाइन. जब भी इन्फेक्शन होएगी, पहली बार इन्फेक्शन होती है, एनाफिलैक्सिस होएगा तो बॉडी में IgE रिस्पॉन्स बढ़ जाता है. सो फर्स्ट हाइपरसेंसिटिविटी इज IgE mediated. फाइन. सेकंड हाइपरसेंसिटिविटी इज ड्यू टू द एंटीबॉडी mediated. Fine. In this, IgG levels are basic. IgG antibodies are produced and they provide protection. In type 3 hypersensitivity, there is formation of immune complexes. Antigen antibody complex बनते हैं and they further provide protection. Whereas in the last, that is delayed type of hypersensitivity. इसमें आपका CD4 cells वगैरह का रोल आएगा. Fine. I am not going in brief of that because it is a complete chapter for your textbook. तो वो जब आएगा इम्यूनिटी में डिस्कस होएगा. और इसमें से आपको किसी भी इम्यूनिटी पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये नोट रख लेना. फाइन. So examples, you have to remember 1 or 2 examples. Like type 1 hypersensitivity example is cercarial dermatitis, Laffer syndrome. Whereas in type 2 that is anemia in malaria, black water fever. Type 3 it is nephrotic syndrome in Plasmodium malaria. अकेला nephrotic syndrome मत बोलना. It is nephrotic syndrome in Plasmodium malaria. Whereas last type 4 is leishmaniasis. Other is immune response mechanism, जैसे evasion. मतलब ये सब पैरासाइट कैसे इन्फेक्शन कॉज करेंगे? कुछ पैरासाइट क्या है, सेल के अंदर जाके करते हैं, दैट इज इंट्रासेलुलर. इंट्रासेलुलर में आपका मलेरिया प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम पैरासाइट आता है. कुछ क्या करते हैं, साइट पे जाके वहां पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं. जैसे प्लाज्मोडियम का जब आप साइकिल पढ़ोगे वो लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है. सो लिवर को आ गया रोल. सॉरी. सम पैरासाइट्स आर एबल टू सर्वाइव इन द मैक्रोफेजेस. जब भी इम्यूनिटी आती है तो अपने मैक्रोफेजेस, आपको इतना तो पता ना, जो सेल्स हैं, जो सेल्स को पैरासाइट या बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शन है उसको डैमेज करेंगे, दे आर बेसिकली मैक्रोफेजेस. तो कुछ पैरासाइट्स क्या करते हैं, मैक्रोफेज के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं. अगर मैक्रोफेज के अंदर सर्वाइव ही करके जिसने मारना है उसके साथ दोस्ती कर ली तो क्या मरेगा? कोई नहीं मरेगा ना. तो बेसिकली सम ऑफ द पैरासाइट्स जो है वो अपने फैगोसाइट्स के अंदर रिजाइड करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर सेव फ्रॉम द इम्यून रिस्पॉन्स. फाइन. सम आर हैविंग एंटीजेनिक वेरिएशन.
एंटीजेनिक वेरिएशन का मतलब जैसे कोई भी वायरस है या कुछ भी है, बैक्टीरिया है, उसके सरफेस पे कुछ ऐसे मार्कर्स होंगे जिसको देख के बॉडी ने एंटीबॉडी बनानी है, फाइन, जो अपनी बॉडी में है। कुछ पैरासाइट क्या करते हैं, अपना मार्कर ऊपर वाली टोपी है यार, सामने सीधी ली है, किसी ने अपनी टोपी का इधर को मुंह कर दिया तो डिफरेंट हो गया ना। तो एंटीजन की अटैचमेंट साइट को चेंज कर देते हैं पैरासाइट अपनी, तो उसको फिर बॉडी जज नहीं कर पाएगी, तो बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट नहीं प्रोड्यूस करना। उसके लिए तो वो नया वायरस या नया पैरासाइट हुआ तो उसके लिए वो A to Z से दोबारा अपना इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करेगा, तब तक वो अपना काम करके निकल जाएगा, फाइन। अदर इज अ लिम्फोसिटिक सप्रेशन है, उसमें कुछ में पॉलीक्लोनल स्टिमुलेशन है। पॉलीक्लोनल मतलब मल्टीपल लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर देते हैं, अपनी कॉपीज बना लेते हैं। सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल, यू हैव टू रिमेंबर फ्यू ऑफ देम विद 1 or 2 एग्जाम्पल्स। Now how to diagnose the parasitic infection? So parasitic जब भी इन्फेक्शन होगी, जब भी आप पढ़ोगे आपको सबको पता लग जाएगा अभी पैरासाइट है तो स्टूल का सैंपल आएगा, जो हम सोचते हैं अपने माइंड में होता है, फाइन। तो फिर स्टूल भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि स्टूल आए, बाकी सैंपल्स भी होते हैं, बट कई बारी मोस्ट ऑफ देम इज स्टूल। सो जब भी स्टूल किन में होगा, जिनमें फीको ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन होगा, तभी स्टूल में कुछ आएगा ना, अदरवाइज तो नहीं आएगा। नहीं तो हम होल ब्लड भी सैंपल लेते हैं। सो जब भी आएगा तो उसमें माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे और मैक्रो मतलब स्टूल का सैंपल आया, आपने देखा उसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, अपने कंटेनर से एडहिरेंट तो नहीं है, कोई विजिबल म्यूकस प्लग्स तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है, कोई आपको सेगमेंट्स तो नहीं दिख रहे। दीज आर व्हाट यू कैन सी मैक्रोस्कोपिकली। फिर आप उसकी माइक्रोस्कोपी करते हो। माइक्रोस्कोपी का मतलब वेट माउंट बनाते हो, मतलब एक ड्रॉप उसका नॉर्मल सेलाइन में डिप करके अपने माइक्रोस्कोप के अंदर पस सेल्स वगैरह या सेलुलर एक्सुडेट्स देखे। उसमें सेलुलर एक्सुडेट्स का मतलब उसमें सेलुलर एक्सुडेट्स का मतलब क्या, उसमें WBCs RBCs क्या देखा आपने, फाइन। उसके बाद अब और क्या देखते हो, आयोडीन। आयोडीन माउंट में कब देखोगे, उसमें आपको इलेबोरेटेड नजर आएगा, कोई सिस्ट है, कैसा स्ट्रक्चर है अंदर से, अपन को पैरासाइट पता लग जाता है। सो ब्रॉडली जब दिमाग में आता है तो स्टूल सैंपल तो जरूर याद रखना है। कई बार बीच में ब्लड लेते हैं, कई PCR वगैरह भी हम करते हैं, फाइन। अदर इज कल्चर मेथड्स, देयर आर डिफरेंट कल्चर टेक्निक्स, जो आपको एक्सैनिक कल्चर, मोनोक्सैनिक कल्चर, वो सारे आएंगे तो उसमें डिटेल्स आ जाएगी आपकी। जैसे हम बैक्टीरिया को कल्चर पे ग्रो करते हैं, वैसे पैरासाइट्स के लिए भी कल्चर मीडिया है। देन इज इम्यूनोडायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब हम एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा डेंगू के लिए आपने सुना होगा NSM-1 एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, बट दैट इज वायरस। लाइकवाइज इन पैरासाइट ऑल्सो एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड्स आर देयर। देन इज इंटरडर्मल स्किन टेस्ट। इंटरडर्मल स्किन टेस्ट का मतलब है कि पैरासाइट को हम इंटरडर्मली स्किन में लगाते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आता है, कितनी देर में आता है, उससे हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को पैरासाइट इन्फेक्शन हुई है या नहीं हुई है। मॉलिक्यूलर टेस्ट है, बाकी एनिमल इनोकुलेशन एंड इमेजिंग टेक्निक्स है। जैसे अपनी टीनिया की इन्फेक्शन है, उसके कारण न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस हुआ, वो ब्रेन को इन्वेड कर रहा है, तो अपन CT MRI वगैरह करा के उसको इलैबोरेटिव देख सकते हैं। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में हम क्या है, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स, मतलब कि उसमें अपन कौन सी ड्रग देंगे, ये वो डिपेंड करता है कौन से पैरासाइट की इन्फेक्शन है। अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, टिनिडाजोल वगैरह है, ये अमीबा में होते हैं, जो अपनी पहली क्लास है, अमीबियासिस वगैरह में देते हैं। लाइकवाइज सर्जिकल मैनेजमेंट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज इन अकाइनोकोकोसिस, जो हाइड्रेटेड डिजीज है, उसमें भी न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस, इन सब में अपन अपने सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं। और कईयों में क्या करते हैं, सेमी कंजर्वेटिव पेयर टेक्निक आती है, इसमें कि अब परक्यूटेनियसली हम कट लगाते हैं, एस्पिरेट करते हैं, नॉर्मल सलाइन वगैरह अंदर फिर से डालते हैं, फिर री एस्पिरेट करते हैं, दैट इज पेयर टेक्निक, वो हाइड्रेटेड डिजीज में हम करते हैं। सो दीज आर फर्दर डिटेल्स ऑफ द वेरियस पैरासिटिक ड्रग्स लाइक टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल वगैरह है। ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट्स बना के DNA को डैमेज करते हैं, उसकी ये अमीबिकोलाइटिस वगैरह की एग्जांपल है। देन इज क्लोरोक्विनिन, आपने सुना होगा, मलेरिया में देते हैं, फाइन। वैसे डाइलॉक्सिनाइड है, ये भी हम देते हैं। एम्फोटेरिसिन B है, ये नाइग्लेरिया फ्लोराई के लिए देते हैं। आपकी बुक में सारे टेबल्स बने हुए हैं, यू नॉट नीड टू टेक अ पिक्स एंड ऑल, फाइन। आपकी बुक खोलोगे सब कुछ दिया हुआ है उसमें, मैंने बाहर से कुछ नहीं लिया। नेक्स्ट इज जियाडिया। जियाडिया की इन्फेक्शन होती है, मेट्रोनिडाजोल नाइट्रोजॉक्साइड देते हैं हम। ट्राइकोमोनियासिस में मेट्रोनिडाजोल वगैरह देते हैं। फिर चागास डिजीज है, चागास डिजीज होती है अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस, इसमें नाइफ्रोटिनमॉक्स देते हैं। ये क्या करती है, फ्री रेडिकल्स बना के उसकी न्यूक्लिक एसिड से बाइंड करके देन एक्शन करती है, फाइन। उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस में है अपनी पेंटामाइड एंड सुरामीन है। लिशमैनियासिस के लिए हम सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट देते हैं।
देन एम्फोटेरिसिन भी, पैरामॉक्सिन ये देते हैं। उसके बाद मलेरिया, आपको मेन जो याद करना, मलेरिया का ट्रीटमेंट याद करना जो आपको एग्जाम में आता है। फाइन, मलेरिया के लिए आप कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हो, कौन सी ड्रग कौन से स्टेज पे एक्ट करती है, लाइकवाइज इज दैट। बिनाइन मलेरिया है तो उसमें अपन क्लोरोक्वीन देते हैं पेशेंट को 21 डेज के लिए। फाइन, अगर कॉम्प्लिकेटेड है या पेशेंट को फाल्सिपारम मलेरिया है तो आर्टिमेंसिन डेरिवेटिव्स देते हैं हम। ये फ्री रेडिकल्स जनरेट करके पैरासाइट की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है एंड देन प्रोटेक्ट फ्रॉम इट। फाइन, आगे बेबियोसिस है, इसमें क्लिंडामाइसिन प्लस क्विनीन देते हैं, एटोवाक्यून एंड एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा के लिए अपन कॉर्टिमोक्साजोल देते हैं। ये क्या करता है, फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है एंड ये प्रोफिलैक्सिस में भी यूज करते हैं। फिर स्पायरामाइसिन है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को टॉक्सोप्लाज्मा की इन्फेक्शन होती है, क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मा इज वेरी सीवियर इन प्रेगनेंसी एंड इट इज इवन ट्रांसमिटेड टू चिल्ड्रन। उड़ जा। फाइन, एंड नेक्स्ट इज द सिस्टोस्पोरा साइक्लोस्पोरा, कॉर्टिमोक्साजोल इज गिवन। फर्दर मूविंग सिस्टोड्स, द ट्रीटमेंट इज प्रेसिक्वेंटल, niclosamide, albendazole. Praziquantel, it increases the cellular permeability and further which leads to paralysis of the contracted site. Trematodes के लिए हम praziquantel देते हैं and it is also affected on the cystodes and then is triclabendazole है। इंटेस्टाइनल निमेटोड्स के लिए हम मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन का आपने नाम सुना होगा, हम यूजुअली प्रोफिलैक्सिस के लिए देते हैं। छोटे बच्चों को बोलते हैं चुनूने लड़े हैं, जो हिंदी टेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें आइवरमेक्टिन वगैरह का कॉम्बिनेशन, आइवरमेक्टिन विद एल्बेंडाजोल का डीवॉर्मिंग आप बोलते हो तो वो देते हैं। फाइन, अगर फिलेरियसिस में DEC देते हैं, एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। ठीक है।